Good afternoon, my dear lovely students. How are you? I hope so. You all are fine and enjoying the videos also. So today I am here with the concept of was and were. Was and where. I already taught you about the concept was and where. Today I am here with the revision of was and where. You have to revise it again. So the concept will be clear to you once again. And you have to do practice, practice and practice in your notebook also. Okay. So let's start. Warm up first in the book. It was there on page number 9. So open your pencil book, take out your semester number 2, page number 9, chapter number 1, was and where. Read the following sentences. See, first we will see here, always remember, first we will read this. Okay, was is used with pronouns I, he, she and it. Was is always, okay, was is always used with the pronoun I, he, she and it. Okay, so we always use was with the pronoun I, he, she and it. See, number 1, for example, he was a doctor. She was a teacher. Okay, so we will use was with the pronoun I, he, she and it. Always remember in your mind that we always use was with the pronoun I, he, she and it. Okay, number 3. She was absent yesterday. So what we are saying that she was absent yesterday. वो कल absent थी और he was absent yesterday और he was a doctor. He was doing a practice of doctor before 3 years back. Okay, she was a teacher. She was a teacher. We can say earlier or we can say before 2 years she was teaching in so and so school. So she was teaching as a teacher in so and so school before 2 years. Okay. So we can use was with I, pronoun he, pronoun she and pronoun it. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा pronoun के साथ में आप ये डेफिनेशन फिर से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसके सेंटेंस आप देखिए कि आपको क्या लिखना है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. was और where के बीच में was हमेशा यूज होता है with the pronoun I, he, she and it. Okay, so we can write some sentence accordingly in our fair notebook. So first you write this definition in your notebook. Write this definition in your notebook. Was is always used with the pronoun I, he, she, it. Write it first.
Okay, now we can write some sentence. Okay, I was absent yesterday. Full stop. It was raining yesterday. Yesterday मतलब जो कल बीत गया है उसको बोलते हैं yesterday. It was raining yesterday. Okay. She was ill last night. Complete this. Okay, now number 4, I have no space, so I am rubbing this. Number 4, he was working as a teacher from last 2 years. मतलब हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि he was working as a teacher from last 2 years. ये पिछले 2 सालों से as a teacher वर्क कर रहा है या कर, if we are using he then कर रहा है, if we are writing she then कर रही है. So he was working as a teacher from last 2 years. Now write this.
Now look at your book on page number 9. Some sentences are written there. There was a king. She was absent in the morning. The moon was bright. There was a large crowd in the street yesterday. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. इसका मतलब हम ये पहले के बारे में जब भी बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? was. क्या यूज करते हैं? was. और ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन के साथ यूज होता है? I, he, she and it. जब भी कोई सेंटेंस हम देते हैं ब्लैंक में, it dash raining yesterday, तो आपको वहां पे was लिखना है, वर्ब का यूज नहीं करना है. ओके, आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको ये ग्रामर पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे क्या यूज करना है. ओके, आफ्टर दैट नाउ यू विल राइट द यूज ऑफ where. Where to use W-E-R-E, where. Okay, now I am going to rub this. Now see here, was is always used for one person, animal, place or thing. Was अभी हमने क्या बताया है कि वो यूज होता है it, she, he, इनके साथ में, I के साथ में, और ये यूज होता है फॉर वन पर्सन. अगर हम किसी वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं या किसी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब भी हम यूज करते हैं was. और where is used with pronoun. Now see here, where, W-E-R-E, where is used, U-S-E-D, used with pronoun. Where is used with pronoun. Okay, ये किसके किसके साथ होता है? We, they, you. Okay, ये यूज होता है pronoun with we, they, you. Now you can write this. Okay, now what we have written, that where is used with pronouns we, they and you. इसी के साथ में ये और किसके साथ में यूज होता है? Let's see here. Where is also used for more than one person. Was यूज होता है one person के साथ में. Where यूज होता है more than one person, more than one animal, more than one place and more than one thing. Okay, and was and where are always used to talk about the past. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों सेंटेंस जो, दोनों वर्ड्स जो है वो पास्ट टेंस, बीता हुए के बारे में जब हम बात करते हैं, जो बीत चुका है उसके साथ में यूज किया जाता है. लेकिन उसमें भी हमें ये बताया गया है कि was किसके साथ लगता है और where किसके साथ लगता है. was लगता है with the pronouns I, he, she and it, और वो यूज होता है एक एनिमल, एक थिंग, एक प्लेस और एक मतलब एक चीज के बारे में. लेकिन जो verb है वो यूज होता है with the pronouns we, they and you. उसके साथ में एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा प्लेस, एक से ज्यादा एनिमल और एक से ज्यादा थिंग्स के लिए. तो हमें इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि हमें पास्ट टेंस के बारे में तो लगाना ही लगाना है, लेकिन हमको कहाँ क्या लगाना है इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए. Okay, now you complete this sentence and then I am going to write some more sentences here. So number 1, we
were, we were absent from the class yesterday. अब वी मतलब क्या हो गया, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर हम आपस में बात करते कि वी वेर मतलब अपन दोनों, या हम लोग दो तीन लोग भी ग्रुप में खड़े जिसमें हम खुद भी उस ग्रुप में हैं, तब हम बोलते हैं वी वेर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। मतलब हम लोग कल क्लास गए नहीं थे, कल स्कूल नहीं गए थे। आपसे जैसे कोई पूछता है ना कल स्कूल में क्या पढ़ाया मैम ने, तो आप दो तीन लोग खड़े हो तो वी वेर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, मतलब हम लोग कल स्कूल गए ही नहीं थे, तो वी वेर एब्सेंट। ओके, now number 2. The boys were not ill. Write this. Now I have no space, so I am going to rub the board and I am going to write the third number sentence. My bike was in the garage. My bike was, my bike, why we have written my bike? See, my means मैं अकेला अपने बारे में बात कर रहा हूँ. I am talking about one person, that means myself. जब my आ गया that means I am talking about myself. मैं एक ही person हूँ, that's why we used here was. My bike was in the garage. My bike was in the garage. So now say me, this sentence is correct if I am written here where we are writing about W-E-R-E, where this was correct or incorrect? This was, the sentence was correct, but what I had done, I had written after W-E-R-E where. So this sentence was incorrect when we had written, where we are writing about W-E
but the sentence is correct. Okay, so here we can write our bikes were. Now what do we use here? Were. Now see here, क्या चेंज हो गया? ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जब हम my यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हमारे खुद के बारे में बात कर रहे हैं, माई सेल्फ के। तो जब मैं मेरे खुद के बारे में बात कर रही हूँ या सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तब हम लगा रहे हैं वॉस। लेकिन यहाँ पे मैंने अवर कर दिया। अवर मतलब हम लोग, अवर बाइक्स, हमारी बाइक, हमारी सबकी बाइक्स वेयर इन द गैरेज, मतलब हमारी बाइक कहाँ है? गैरेज में। यहाँ पे अवर आ गया मतलब हमारी, और बाइक्स आ गया, दैट मीन्स एक से ज्यादा हो गई बाइक्स। तो अवर बाइक्स वेयर इन द गैरेज। नाउ दिस इज द राइट सेंटेंस वेयर वी शुड राइट W-E-R-E, where. Okay, now see here. Amita and Kavita. Amita and Kavita went to the market. Went to the market. Went to the market yesterday. मतलब कभी, अब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था? जब हम एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं तब भी यूज करते हैं W-E-R-E, where. So Amita and Kavita, they both were sisters also, they both were friends also, we don't know about them. So Amita and Kavita went to the market yesterday, मतलब ये दोनों कल मार्केट गई थी। Now complete this sentence. Now look here, we had already completed where to use was. Was used with the pronouns I, he, she and it, and where we use with the pronouns you, they and we. Okay, ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ में हमने ये भी क्लियर कर लिया कि was का यूज हमेशा one person, one place, one animal और one thing के लिए होता है, और where का यूज एक से ज्यादा एनिमल्स, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा प्लेस और एक से ज्यादा थिंग्स के लिए होता है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगी जो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप इसे चाहे तो ओरली सुन लीजिए अच्छे से। ओके, सी, अब ये प्रोनाउंस की तो बात हो गई, लेकिन मान लीजिए देयर आ गया, THERE, देयर डैश मैनी, MANY, मैनी शॉप्स इन द मार्केट, MARKET, मार्केट। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया देयर डैश अ किंग,
सी देयर के साथ में हमें सेंटेंस पे ध्यान देना है कि सेंटेंस क्या आ रहा है। जैसे देयर डैश मैनी शॉप्स, मैनी मतलब बहुत सारी, शॉप्स मींस दुकानें, मैनी शॉप्स इन द मार्केट मतलब मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। सो देयर के साथ में यहाँ पे वेयर आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक से ज्यादा दुकानों के बारे में। सो हियर वी यूज वेयर। अब यहाँ पर भी देयर है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, अ किंग। अ किंग मतलब एक राजा, यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा वॉस। हुआ क्लियर आपको? क्योंकि ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि कहाँ पे वॉस और वेयर का यूज हो रहा है। प्रोनाउंस के साथ तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ में एक एनिमल, एक प्लेस, एक थिंग, एक पर्सन के साथ में, तो हमें उस सेंटेंस पे भी ध्यान देना है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के साथ में भी हमें वेयर और वॉस का ध्यान रखना है कि किसको हमें कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जब हम मैनी थिंग्स आ जाता है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे देयर डैश प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, तो प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, तो उसमें भी आ जाएगा वेयर। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में आप लोग लॉक कर लीजिए डेफिनेशन को कि हमें किसके साथ में क्या यूज करना है, उस डेफिनेशन के साथ में ही आपको सारी चीजों को आगे बढ़ाना है। ओके, सो हम लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हमारी एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि किसके साथ में हमें क्या यूज करना है। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। आपको होमवर्क में मुझे एक वीडियो बना के भेजना है जिसमें आपको वॉस और वेयर का यूज करना है विथ फुल सेंटेंस। आप 5 सेंटेंस टोटल बनाइए वॉस और वेयर के मिला के, या 6 बना लीजिए, 3 वॉस के 3 वेयर के, और उसका वीडियो प्रॉपर्ली आप मुझे बना के सेंड कीजिए। और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको अच्छे से करते आएगा। तो आपके पास टाइम है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रफ नोटबुक में अपनी रिवाइज करते